بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے پاکستان اسٹڈی ڈرائی کلاس دہم کے پہلے 2 لیسنز کو اچھی طرح اٹینڈ کیا ہوگا اور آپ کو مدد ملی ہوگی ان کے اندر موجود مواد کو سمجھنے کی۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 3 ہے پاکستان اسٹڈیز ڈرائی کلاس دہم چیپٹر نمبر 1، یا جس کو ہم چیپٹر نمبر 5 بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کی ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں جس میں آپ اس کتاب کے مکمل جائزے اور چیپٹر نمبر 1 یا آپ 10th کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو چیپٹر نمبر 5 کا مکمل اوور ویو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ مکمل چیپٹر کتنی چیزوں پر، کتنے عنوانات پر، کتنے ٹاپکس پر مشتمل ہے، اور جو ہماری بک ہے مطالعہ پاکستان دہم کی، وہ کتنے چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ آج کا لیسن ہمارا ہے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت، جو 1988 سے لے کر 1990 تک مشتمل تھا۔ بہت ہی اہم دور حکومت رہا یہ بھی، کیونکہ اس کے اندر اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ضیاء الحق کا 11 سالہ اقتدار ختم ہوا، اور ضیاء الحق نے کیونکہ بھٹو کو پھانسی دے کر کسی مقدمے میں پھانسی دلوا کر ایک قتل کے مقدمے میں برسر اقتدار آئے تھے اور 11 سال تک حکومت کی تھی۔ اب چونکہ 11 سال کے عرصے کے بعد وہ ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے، تو اس حادثے کے بعد جو ملک میں انتخابات کی فضا بنی، ان انتخابات میں انہی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ ایک بڑی سیاسی رہنما کے طور پر منظر عام میں آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا۔ اگر ہم اس دور کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو 1988 میں ضیاء الحق کی شہادت ہوئی، وہ ایک فضائی حادثے میں بہاولپور کے قریب شہید ہوئے۔ اس کے بعد 11 سال کا ان کا دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہوا۔ ضیاء الحق کے شہید ہونے کے فوراً بعد ہی جو سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بطور صدر مملکت عہدہ سنبھالا اور پاکستان میں انتخابات کروانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 2 دسمبر 1988 کو دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اقتدار میں آئی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس سے پہلے کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے کوئی بھی خاتون وزیر اعظم نہیں منتخب ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا 2 دسمبر 1988 کو کہ پاکستان میں بے نظیر بھٹو جو ہے وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی اس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہوئے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ یعنی ملک کو کون لیڈ کرے گا، وہ چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو کا عہدہ سنبھالا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کروائے۔ یعنی جو انتخابات 1988 میں ہوئے ان میں جماعتوں کو یہ الاؤ کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی پارٹیز کو، کہ وہ اب جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز یعنی اسلام آباد وفاقی حکومت، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی 2 صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا۔ میں پہلے اس میں بیک گراؤنڈ پہ بات کر چکا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ضیاء الحق کا کتنے سال کا دور اقتدار تھا، وہ کب شہید ہوئے، کس نے صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا، کب انتخابات ہوئے، اور کون پہلی دفعہ اسلامی دنیا کی طرف سے وزیر اعظم منتخب ہوا، ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ان کو آپ نشان لگاتے جائیں۔ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ایم سی کیوز میں آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔
पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद अगर आपको याद हो तो ये नवाज शरीफ ने जो है वो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाई थी, और नवाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला पंजाब थे इस पीरियड के दौरान। 1988 से 90 के दरमियान जो है नवाज शरीफ जो है वो पंजाब में वज़ीर आला थे। पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के क़याम को हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत की बहाली करार दिया गया। इस दौर की अहम इस्लाहात की तफसील कुछ यूं है। अब इस दौर में क्या क्या इस्लाहात हुई आप पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। हर दौर में कोई ना कोई इस्लाहात होती रही हैं। तो इस दौर में जो जो इस्लाहात हुई हैं वो हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लेक्चर को कंप्लीट सुनेंगे तो आपको हर लेक्चर में इस चीज़ की निशानदही में करता चला जाऊंगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप साथ साथ उसको तैयार कर। तलबा आप अपने जहन में ये चीज़ बिल्कुल रखें कि कभी भी कोई चीज़ आप जब सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं तो वो आपके हाफजे में साथ साथ स्टोर हो जाती है। जब आप उसको दोबारा अपनी तरफ से याद करते हैं और किसी के याद कराए हुए तरीके से वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं और पेपर में उनको दोबारा दोहराई करके याद करने में आसानी रहती है, बनिस्बत कि आप बुक उठा के बैठे रहें और उसमें से आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो। तो सनती इस्लाहात की सबसे पहले बात करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुल्क में बहुत सी सनतें लगाई गई। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल की सनत ने तरक्की की। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों की सनतें वगैरह इन्होंने तरक्की की। छोटी छोटी इस्लाहात है। उसके बाद ज़राई इस्लाहात आ रही हैं कि ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बीज, खाद और ज़राई अद्वियात खरीदने के लिए किसानों को आसान शायद तक कर्जे दिए गए। तालीमी इस्लाहात हैं कि तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई और ख़वातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात क्या हैं कि शहरों और देही इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए। माशी इस्लाहात यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया जिससे हज़ारों लोगों को मुलाजमतें मिली। प्लेसमेंट ब्यूरो जहन में रखना है आपने कि पूछा जा सकता है प्लेसमेंट ब्यूरो किसके दौर में शुरू हुआ, तो आपको पता हो बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में। प्लेसमेंट ब्यूरो का मकसद ये था कि लोगों को उनकी डिग्री, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन के हवाले से उनको सही इदारों में प्लेस किया जाए, उनकी नौकरी का बंदोबस्त किया जाए। माशरती इस्लाहात हैं जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम यानी लोगों की जो है वो माशरती ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट आए, तो ये एक इदारा शुरू किया गया। आइनी इस्लाहात हैं यहाँ पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में 11वीं तरमीम 1989 में पेश हुई। एक ही तरमीम हुई और वो 11वीं थी अपने नंबर के हिसाब से, अपनी तरतीब के लिहाज से। ये कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से थी। तरमीम का मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि तरमीम क्या होता है कि एक बिल पेश किया जाता है कौमी असम्बली में हुकूमत की तरफ से, काबीना का कोई वजीर पेश करता है, उसके अंदर वो बात की जाती है कि हम इस चीज़ को आइन का हिस्सा बनाने लगे हैं। तमाम कौमी असम्बली उस बिल के ऊपर बहस करती है, उसके खदोखाल डिस्कस करती है, उस पर तनकीद करती है। अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो वो दोबारा काबीना में चली जाती है और काबीना उस तरमीम को, उस बिल को दोबारा जो है वो एडिट करती है और फिर असम्बली में ले आती है। फॉर एग्जाम्पल वो असम्बली में आप उसको ले आए हैं और असम्बली में वो बिल पास हो गया है, तो वो कौमी असम्बली से तो पास हो गया और फिर वो बिल जो है सेनेट में जाता है, और जब वो सेनेट में जाता है तो वहां पे भी कौमी असम्बली जैसा ही मामला दरपेश होता है। अगर सेनेट से भी वो बिल पास हो जाए तो तकरीबन ये समझा जाता है कि वो तरमीम का हिस्सा बन चुका है और फिर वो सदर के पास जो है वो अप्रूवल के लिए, तस्दीक के लिए चला जाता है। सदर अगर उसको अप्रूव कर दे तो वो कानून का हिस्सा बन जाता है और वो चीज़ कहलाती है तरमीम। तो ये सारी तरामीम ऐसे ही होती हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा जी, आखिरी चीज़ है हमारी इस टॉपिक की इंतजामी इस्लाहात के। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1972 में पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। दौलत मुश्तरका कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ पर मुश्तमिल वो ममालिक थे जहाँ बरतानिया जो है वो पहले हुक्मरानी करता रहा, लेकिन बरतानिया से अलहदगी या आज़ादी के बाद वो सब लोग दौलत मुश्तरका के बैनर के नीचे वो एक समझ लें एक अंजुमन करार पाई और वो उसके रुकन ममालिक करार पाए। तो 72 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस दौलत मुश्तरका से अलहदगी इख्तियार कर दी थी। इस चीज़ को MCQs के तौर पर ज़हन में रखें।
1989 में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका का रुकन बना, यानी बेनज़ीर ने 89 में इसी का दोबारा हिस्सा बनना चाहा। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी पर अमल किया। भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली चौथी सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये याद रखिएगा कि सार्क की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? चौथी। कौन उसमें शामिल हुआ था? राजीव गांधी। कौन थे वो? हिंदुस्तान के जो है वो वज़ीर आज़म थे। इस मौके पर हुकूमत वक्त ने भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में दिसंबर 1988 में सदारती इंतखाबात हुए, यानी सदर का इंतखाब शुरू हुआ कि अब सदर को मुंतखब किया जाए। सदर की मियाद पूरी हो चुकी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसमें गुलाम इसाक खान सदर पाकिस्तान मुनक्कद हुए। वही सदर जो पहले ज़िया के एंड वाले दौर में थे, वही दोबारा मुंतखब हुए। अब यहाँ से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कनेक्ट हो रही है हुकूमत के खात्मे की तरफ। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ पूछी जा सकती है कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत कैसे खत्म हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चीज तो ये ध्यान में रखिए कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत सिर्फ 20 माह का था। 20 माह ये हुकूमत चली, 20 मंथ्स, 1 साल और तकरीबन 8 माह, सिर्फ इतनी मोहलत जो है मिली इस हुकूमत को काम करने के लिए। तो हुआ क्या? गुलाम इसाक खान ने आइन की शिक 58(2)B, याद आ रहा होगा आपको कि इसका जिक्र कहाँ हो चुका है, कि आइन की शिक 58(2)B को इस्तेमाल किया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पे कुछ करप्शन के चार्जेस लगे और कुछ इस तरह की बातें जो हैं उन्होंने बेस बना के इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कर दिया। ये कानून था ही यही कि सदर के पास इख्तियार होता था कि वो जब चाहे वो वफाकी हुकूमत और सूबाई असम्बलियों को तहलील कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो 20 माह के अंदर अंदर गुलाम इसाक खान ने 58(2)B को जो है यूज करते हुए इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि 58(2)B क्या यहाँ पे पहली दफा इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में 88 के बाद, या दूसरी दफा इस्तेमाल हुआ, या तीसरी दफा इस्तेमाल हुआ? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 58(2)B जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत को खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल हुआ, क्या वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस्तेमाल हुआ, या दूसरी दफा, या तीसरी दफा? ये आपके ऊपर। पढ़ लेते हैं इसको। ये हुकूमत 20 माह से ज्यादा न चल सकी। सदर मुमलिकत गुलाम इसाक खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर बहुत से इल्ज़ामात आयद करते हुए आइन की दफा 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। मरकजी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी। जी, तो उम्मीद है कि इस दौर को समझने में आसानी मिली होगी आपको। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप जहन में रखें, इस्लाहात जहन में रखें, जो इस्लाहात के अंदर चीज़ें आई, प्लेसमेंट ब्यूरो, पीपल्स वर्क कमेटी, या ये क्या चीज़ें थी, और फिर एंड में हुकूमत का खात्मा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और कितनी देर हुकूमत चली। ये सब बातें अगर आपके जहन में रह जाती हैं और आपको इनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते हो पेपर के ऊपर, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। और डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडीज़ अब इस तरह की चीज़ नहीं रही कि आप इसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करें तो ये नंबर आए। थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें। तो अगर हम भावलपुर बोर्ड के हवाले से या मुल्तान बोर्ड के हवाले से बात करें तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आपके अब बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको पेपर पैटर्न और पेपर को हल करने का तरीका और कुछ टिप्स आपको बताऊं कि पेपर को किस तरह हल करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी आपको 1-2 दिन के अंदर ही इन्हीं लेसन्स के साथ साथ ही पेपर पैटर्न और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, पेपर प्रेजेंटेशन और मार्क्स लेने का तरीका और वो चीज़ें जिनसे बच्चे मार्क्स खो बैठते हैं, उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी आगाह करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।